Hello, good afternoon. So business studies is very easy, and those who have taken in school business studies and entrepreneurship, business studies is compulsory, entrepreneurship में भी काफी topics cover हो जाते हैं and that becomes easy. Okay. Now अंश आपका IP कैसे चल रहा है? Information practice. How is IP? Good. So do you have daily sessions? रोज उसके लेक्चर्स होते हैं आईपी के? गुड. यस. एंड आई थिंक आईपी इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट, राइट? तो अगर आप रेगुलर रहोगे तो इट इज इजी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. करेक्ट. नाउ here we need to go through few more concepts about this. Now चलिए इसे हम कर देते हैं फुल स्क्रीन. एंड यस्टरडे हमने यूनिटी ऑफ कमांड डिस्कस किया था, एंड हियर वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स ऑल द पीपल शुड वर्क or all the work should be directed towards a common goal. There has to be a coordination. So unity of direction, what it says that for one unit there must be one plan. It means सबको एक plan देना चाहिए क्या करना है. It means all should be directed towards one direction, that is the achievement of common goal. Ultimate goal of any company is to earn profit. So direction इस वे से होनी चाहिए कि people work, there is coordination and सब same direction में profit के लिए काम हो. Okay, so it leads to coordination and common objective must have one head and one plan. देखो एक एग्जांपल दिया है कि if organization is producing different products, अलग अलग है, मशीन्स मेडिसिन्स भी है, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स मीन्स पेपरमेंट्स, कॉस्मेटिक्स आइटम्स भी है, मेकअप का सामान एंड ऑल, एंड इसकी खुद की मार्केट है एंड इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो देयर. तो ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट. हर डिवीजन को अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए एंड डिवीजन मस्ट पुट वर्क्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्लान ऑफ देयर डिवीजन. देखो हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट का टारगेट भी पूरा करेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का टारगेट पूरा होगा कि नहीं? Yes or no? Yes. So it is very important and it also applies to the student. If you fulfill your daily target, so automatically you are directed towards best results. Yes or no? Yes. So direction is very important. Okay. So under the direction of one head, okay, if there are many persons then directions may differ, so they should be directed under one head and no account should overlap का मतलब है डुप्लीकेशन. सेम काम दो अलग अलग डिपार्टमेंट करे ऐसा नहीं होना चाहिए because it indicates that there is no proper direction. So it is called overlapping means duplication of work. तो फिर यहां पर positive effects, if there is proper direction, then what is the plus point? We can achieve our goal. Okay, and another thing,
all the efforts will get unified. हर एक की एफर्ट्स यूनिफाइड हो जाएगी, सिंगल डायरेक्शन में होगी if we follow this principle of unity of direction. Now what are the consequences? अगर ये प्रिंसिपल वायोलेट किया, इफ देयर इज नो कॉमन डायरेक्शन, हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा, तो देयर वोंट बी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मिस आउट हो जाएगा, देयर वोंट बी इफिशिएंसी, वेस्टेज हो जाएगा एफर्ट्स का एंड रिसोर्सेज का, and there will be difficulty in achieving goals. Company will not be able to achieve the desired goal. पूरा goal achieve नहीं होगा. Okay. Now, generally there is confusion between these two, unity of command and unity of direction. Now, unity of command में इन्होंने कहा था कि एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही जन को रिपोर्टिंग करेगा, one boss, that is unity of command. And unity of direction क्या कहता है कि there has to be one division or one unit on one plan. It means यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि हर एक जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का एक गोल होना चाहिए, अलग अलग गोल होंगे तो डायरेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, तो ईच डिवीजन, डिपार्टमेंट का भी सब पार्ट हो सकता है, उसे हम यूनिट बोल सकते हैं। तो ईच यूनिट, यूनिट का मतलब जो कोई सेम टाइप का काम कर रहा है, तो ईच यूनिट शुड हैव वन प्लान। आर यू क्लियर? ओके। देन मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई किसकी बात सुने, एंड यू कैन फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमांड एक ही जन देगा तो उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, तो यू कैन मेक दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल। बट हियर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन पर्पस क्या है कि एफर्ट्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ओके, वो अचीव हो। इन अदर वर्ड्स मेन पर्पस है कि देयर इज ए कोऑर्डिनेशन, efforts of employees of one department should be achieved. That is the main objective of that department. If this principle is followed, unity of command, then there will be clarity in the minds of employees. And अगर unity of direction को follow किया, then पूरी कंपनी सेम डायरेक्शन में काम करेगी, तो इट इज लाइक सिंगल कंपनी, और एवरी डिपार्टमेंट will not be looking working different from each other. All company, entire company will look as if it is working together, so it will look like a single unit. पूरी कंपनी एक यूनिट की तरह लगेगी. Now if unity of command is followed, then there will be systematic working. Okay, कंपनी में efficiency हो जाएगी because एक ही person command दे रहा है. Okay, there is no confusion. And if this principle is followed, then there will be coordination of activities. Unity of direction will give common direction to all different units of a company. All will be working in a common direction for a single goal, and hence coordination automatic hoga. Okay, so now here we have case study जो यहाँ पर विवेक रीड करेगा. विवेक प्लीज रीड. विवेक अभी थोड़ा एक्टिव रहना है. ओके, आपके चैट बॉक्स में मैसेजेस नहीं आते हैं. यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू रीड. ज्वाइन किया है तो यू शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट. चैट बॉक्स में तो लिखो क्या इश्यू है. विवेक, अच्छा विवेक आराम कर रहा है. हाँ बोलो, रीड करो जल्दी. हाँ, सो प्लीज रीड.
हेलो, कोई इश्यू है वहां पर माइक का? ठीक है, चलो, माइक का प्रॉब्लम है। सूरज was engaged in the business of carpet making. Since the company was making handmade carpet as well as machine made carpet, there were lot of overlapping of activity. याद रखो, overlapping of activities का मतलब है duplication of activities हो रहा था, एक काम दो बार हो रहा था, या सेम काम दो अलग अलग जन कर रहे थे। मैनेजर एडवाइस थे देयर शुड बी टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ, दोनों अलग अलग डिवीजन की तरह करो, एंड ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज, ये इंचार्ज होना चाहिए प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन। वो ये कहता है कि दोनों अलग अलग यूनिट का अपना अलग अलग प्लान होना चाहिए। So identify the principle insisted by the production manager. तो हर यूनिट का अलग से प्लान होना चाहिए, ये हमने कहां पर सीखा था? What is answer? Unity of direction. Okay. If there is common plan, देखो प्लान के बिना आप किसी को डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? There has to be a plan, based on that we can direct ourselves. And for us also we need to have goal in life. अगर हमारा गोल होगा तो ही हम अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। Yes or no? So raise your hand if this point is clear. Okay. Now सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा होगा कि क्लैश है, हमारा फायदा करेंगे तो कंपनी का नहीं होगा, और कंपनी का फायदा करेंगे तो हमारा फायदा कम होगा। तो व्हाट यू फील, पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा कि कंपनी के इंटरेस्ट को? कंपनी के इंटरेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मनमीत इज वर्किंग इन ए कंपनी। ओके, मनमीत इज द परचेस मैनेजर, वो परचेस करता है, मैं मनमीत का रिलेटिव्स हूं। तो मनमीत ने अलग अलग पर्सन से कोटेशन मंगाए चीज खरीदने के लिए, मेरा जो क्वालिटी है बराबर बाकी के जैसा ही है, मेरा प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो मुझे बताओ मनमीत, आपको मुझे ऑर्डर देना चाहिए या फिर आप और जो बेस्ट है उसको ऑर्डर दोगे? सर जो बेस्ट है उसको, बेस्ट है उसको देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी शुड नॉट फुलफिल अवर पर्सनल रिलेशंस। ओके, हो सकता है कि वो आपका फैमिली मेंबर हो, आपका भाई भी क्यों ना हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी का सोचना है। तो सबऑर्डिनेशन का मतलब है सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हियर जनरल इंटरेस्ट मीन्स कंपनी का इंटरेस्ट। सो व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कंपनी को पहले खुद के बारे में जो अच्छा है, जो कंपनी के बारे में अच्छा है वैसा, सुपरसीड का मतलब है ओवर पावर। तो कंपनी शुड टेक द डिसीजन विच इज बेस्ट फॉर द कंपनी, यानी कंपनी कोई एम्प्लॉय के रिलेटिव्स को काम पे रखे, उससे बेटर है कि जो इफिशिएंट पर्सन है, जो होनहार है, कैपेबल है, उसे काम पर रखे। रिलेशंस को नहीं देखना है, कंपनी का देखना है। सो इट मीन्स सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल एम्प्लॉइज हैव सम ऑब्जेक्टिव, एंड कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव्स होता है। So if the objective of individuals same direction में है तो कोई इशू नहीं है, but अगर objective of both the groups are different, यानी लोगों का and कंपनी का अलग अलग objective है, तो we must try to reconcile. reconcile का मतलब क्या है? एडजस्ट, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपना हित जो है वो कंपनी के हित के साथ जोड़ देना है।
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कंपनी के लिए। ओके, अपना पर्सनल गेन साइड पे रखना पड़ सकता है। अगर कंपनी में जरूरत पड़ी है ओवर टाइम करने की, बहुत जरूरी है, तो कंपनी का देखना है। ओके, so manager must take all the decisions by giving priority to organization का interest and not the personal interest, ये main चीज है इसकी। ओके, और एम्प्लॉय को अपनी अथॉरिटी पर्सनल फेवर के लिए मिसयूज नहीं करनी है। अच्छा, अगर ऑफिस वालों ने आपको इंटरनेट दिया है, एयर कंडीशनर दिया है, तो आप अगर 1 घंटे के लिए भी बाहर जाते हो और एसी चालू रख के जाते हो तो ऐसा चलता है? नो। आप सोचते हो बार में फिर से मैं आऊंगा एंड आई शुड अगेन स्विच ऑन द एयर कंडीशनर, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है, कंपनी का सोचना है। सो बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल्स, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, ऑर्डर किसको देना चाहिए? गिविंग ऑर्डर टू रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, जिसका अच्छी क्वालिटी है उसको ऑर्डर देना चाहिए। गिव ऑर्डर टू द बेस्ट, बेस्ट पर्सन को ऑर्डर दो। सो इट्स वेरी इजी। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो हुआ तो कंपनी का गोल अचीव होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन विल बी देयर, क्योंकि ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनली फॉर देयर गोल्स। एंड इफ इट इज वायोलेटेड देन गोल्स मे गेट डिलेड, प्रॉफिट का टारगेट शायद अचीव न हो, एंड लॉन्ग रन में ये नहीं चलता। शॉर्ट टर्म अगर आप करोगे तो ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। ओके, नाउ लेट मी शेयर विथ यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। वी वर वर्किंग इन ए कोटक लाइफ इंश्योरेंस। वहां क्या हुआ कि एक ब्रांच मीन्स अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है कोटक लाइफ इंश्योरेंस की, हेड ऑफिस में हम थे, हमारे पास हम ऑडिटर थे, चेक करना था, रिकंसिलिएशन करना था, डेटा आया, हर अलग अलग ब्रांच का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंपेयर किया, वेरिएशन फाइंड किया, तो एक ब्रांच का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा हो गया, दूसरे मंथ भी बहुत ज्यादा हो गया, जितना था उससे 3 टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। हमने फोन किया, रीजन मांगा, मैनेजर को पता नहीं है, वो भी सरप्राइज था ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में एंड में पता चला कि वहां पर छोटी सी ब्रांच थी तो चाबी एक होती थी वॉचमैन के पास, बिल्डिंग का वॉचमैन रात को आ जाता था, कोई होता नहीं था, तो बिंदास सभी एयर कंडीशनर चालू करके वो सो जाता था पूरी रात। ओके, सो ये नहीं होना चाहिए। ओके, सबऑर्डिनेशन, here we have case study, तो अंश can you please read this? Hello. Mr. Malhotra, finance manager of ABC Limited, applied for leave to attend a family function. ओके, कोई नेटवर्क इश्यूज है इन अमृतसर, तो डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी रिक्वेस्टेड टू कैंसल। ओके, उन्होंने कहा कि भाई कैंसल कर दो लीव बिकॉज देयर इज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। मल्होत्रा ने मान ली ये बात एंड उसने सोचा मीटिंग जरूरी है कंपनी के लिए, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया है मिस्टर मल्होत्रा ने? ताली होनी चाहिए मल्होत्रा के लिए, वेल डन मिस्टर मल्होत्रा। क्या किया मल्होत्रा ने? कौन सा प्रिंसिपल? Principle of subordination of individual interest. यस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके, फॉर कंपनी का इंटरेस्ट। वेरी गुड। Now we have remuneration of persons. We all are working for money. So salary should be paid fairly or adequately so that उनको satisfaction मिले। हालांकि कोई भी अपनी पगार से लेकर खुश होता है कभी? नो, बट फिर भी एडिक्वेट या फेयर पेमेंट देना चाहिए। ओके, एंड रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड वो जी सके ऐसी सैलरी पे करनी चाहिए। नाउ मैं बताऊं
आज इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज। गवर्नमेंट में आज मिनिमम सैलरी कितनी है? 30,000 तो मिनिमम सैलरी है। ओके, और अगर मैं टीचर की बात करूं तो गवर्नमेंट टीचर्स को कितना पेमेंट मिलता है पता है? स्टार्टिंग सैलरी 40,000। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल मिनिमम 40,000 सैलरी पे करता है? नो, नहीं पे करता है। ओके, और ये मेन डिफरेंस है, यानी गवर्नमेंट से भी प्राइवेट वाले कम सैलरी पे करते हैं। सो देयर इज बिग इश्यू, और इसीलिए काफी प्रोफेशनल्स इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर गांव में एटलीस्ट रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड जितनी सैलरी मिलती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, एंड एक्चुअली जो पेमेंट होता है इट शुड बी एज पर द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनी के पास बहुत पैसे हैं फिर भी पेमेंट नहीं देगी, सो दैट इज रॉन्ग। सो कितना पेमेंट देना है डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल कैपेसिटी। अदर थिंग, एज पर द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, एंड it also depends on competitors. okay, और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, हर कोई कम पे कर रहा है तो सभी लोग बोलते हैं कि चलो अभी हम कम पे करते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स भी उतनी पे करता है। सो एग्जाम्पल है कि इफ देर इज मोर प्रॉफिट then some part of the profit must be given to the employees. अगर हम बोनसेस नहीं देंगे तो क्या होगा? स्ट्राइक कर जाएंगे वो। देयर वोंट बी एनी मोटिवेशन फॉर देम टू वर्क हार्ड। सो अगर अच्छा पेमेंट दोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, देयर विल बी कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एक और फायदा क्या होता है कि अगर आपने ये वायोलेट कर लिया, इफ यू डोंट पे वेल, तो इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? तो वो छोड़ के चले जाएंगे जॉब। यस, तो और रेट न्यू कोई पे ऑफ जाएंगे। लीविंग कंपनी। अच्छा, पहले के मुकाबले आज के तारीख में लोग ज्यादा जॉब्स चेंज करते हैं, यस या नो? यस, पहले तो पूरी जिंदगी एक कंपनी में बिता देते थे, अभी ऐसा नहीं है। एंड इफ यू डोंट पे देम वेल तो देयर विल बी डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन। तो सबसे इजी प्रिंसिपल ये था, एंड यहाँ मनमीत बताएगा व्हाट इज द केस स्टडी। Mr. Ram started a small business with limited investment. He hired labor and them very less wages over the time with broad vision of Ram and hard work of his employees. The business started earning very good revenue, but with increase in earning capacity of company also Ram did not increase the wages and salary of his employees. They were not able to maintain a reasonable standard of living. तो कौन सा प्रिंसिपल उसने ओवरलुक कर दिया? ओवरलुक का मतलब है वायोलेट कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? Remuneration. यस, फेयर रेम्यूनरेशन। ओके, गुड। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे 8.1 फॉर टुडे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Now, centralization means taking the decision from one place. Okay, head office से सब decide होगा तो it is called centralization. And decentralization का मतलब क्या होगा? डिसीजन कौन लेगा? ब्रांचेस अपना अपना डिसीजन खुद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट जो भी बाय करता है वो अलग अलग खुद का बाय करते हैं या एक जगह से ऑर्डर जाता है? एक जगह से वो बल्क में लेते हैं। ओके, सो नाउ हर एक चीज को सेंट्रलाइज करना चाहिए, यस या नो? No, sir. नो। हर एक चीज को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, यस या नो? No, sir.
Again, no. So there has to be a balance depending on situation. अगर आप स्टेशनरी, पेपर, पेन ये सब भी एक ही जगह से ऑर्डर करोगे, कोई ऑथोरिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा. So there has to be a balance. So what this Fayol uncle says that सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन द फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल. अच्छा, इंडिया में पॉलिटिक्स में भी सेंट्रलाइजेशन हो गया है. 2-3 जन ही डिसाइड करते हैं सब कुछ. एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, पॉलिटिक्स बहुत वैसे गंदी खेल है. नाउ हियर complete, कि there must not be complete centralized or completely decentralized company, but there has to be, must be a combination of both depending upon the size of organization. So ये कहते हैं कि जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा. yes or no? यस. देखो, कंपनी छोटी है तो एक जन काफी चीज के लिए डिसाइड कर सकता है. इफ द कंपनी इज लार्ज, सो मेनी डिसीजंस आर टू बी टेकन, और अगर एक जन के भरोसे रहे तो देयर विल बी प्रॉब्लम. तो बड़ी कंपनी को ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है. एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास होनहार एम्प्लॉइज है तो डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर नालायक एम्प्लॉइज है तो फिर आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते. ओके, आर यू क्लियर? एंड Fayol advised not to have complete centralization or decentralization. So देखो, यहां पर एक एग्जांपल दिया है कि पंचायत, हर गांव में पंचायत होती है. ओके, सो गवर्नमेंट ने ये डिसेंट्रलाइजेशन किया है क्योंकि उनको फ्रीडम दे दिया है. सो व्हाट गवर्नमेंट हैज डन? डिसेंट्रलाइजेशन. बेनिफिट, इफ यू डिसेंट्रलाइज, sorry, if you have balance between centralization and decentralization, तो आपको दोनों के ही बेनिफिट्स मिलेंगे. दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है. एंड फास्ट डिसीजन भी ले पाओगे, कुछ डिसीजन जो डिसेंट्रलाइज हो गए हैं. और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी होगा. स्ट्रिक्ट कंट्रोल कब होगा? सेंट्रलाइजेशन से. व्हेन देयर इज सेंट्रलाइजेशन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल आप रख सकते हो. फास्ट डिसीजन कब होगा? ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन. Okay, and if you violate this principle, then again there will be the problem, delay होगा. अगर सेंट्रलाइजेशन ही रखा है, कोई ऑथोरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, तो देयर विल बी डिले. डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है फास्ट डिसीजन के लिए. अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज बहुत स्लो डिसीजन लेती है क्योंकि गवर्नमेंट इज डिसेंट्रलाइज्ड. ओके, सब सेंट्रलाइज्ड है, ऊपर फाइल पहुंचेगी तभी डिसीजन लिया जाएगा, मीटिंग होगी. एंड प्राइवेट सेक्टर डिसेंट्रलाइज्ड होता है कुछ हद तक. कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो सकती है. हो सकता है कि वो ब्रांच अपने एडवांटेज का, पावर का मिसयूज करे. सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग हमें क्लियर है. सेंट्रलाइजेशन में पावर होता है हायर लेवल पे, और डिसेंट्रलाइजेशन पे हर एक जन को पावर मिलता है. एंड अथॉरिटी, यहाँ पर टॉप वाले मैक्सिमम अथॉरिटी रखते हैं, मिडिल को कम मिलती है. एंड यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन में एवरी लेवल विल गेट द अथॉरिटी. सो आई होप यू आर क्लियर. जाते जाते हम ये एक रीड कर लेते हैं. Who will read? आदित्य. Yes, sir. Sir, ABC Limited permits their sales to give discount up to 10% as a discretion and credit to their regular customers. If the salesman wants to give more than 10% discount for special orders, then they have to take permission from top level.
So this is related to which principle of management? देखो थोड़ा वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है तो इसे क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। ऊपर से नहीं, वो खुद डिसाइड कर पाएगा। एंड मोर देन 10% में परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? centralization. So this is Centralization. the principle of centralization and decentralization. Okay. So काफी अच्छा है। स्कूल में बिजनेस स्टडीज कैसे जा रहा है आपका? Which chapter you are doing? सर सेकंड चैप्टर ही चल रहा है अभी। हेनरी फेयोल यही चालू है? वेरी गुड। Yes, sir. And what about DPS? Aditya, what is going on in DPS? आदित्य सोच रहा है। No, sir, third chapter. Okay, very good. What is the name of the chapter? ठीक है, चलो, okay, कल बता देना। So we'll meet on Monday. Prepare for the test of admission. Okay, we will conduct it soon. Bye bye.